Okay जी, so in the last session we were discussing about the indicators and the competencies. यहाँ पे जो है वो हम यही देख रहे थे कि बेसिकली जो इंडिकेटर्स हैं वो किस तरीके से जो है वो उसका उसके थ्रू जो है वो हम कॉम्पिटेंसीज़ का जो है वो पता लगा रहे होते हैं। उसमें हमने जो है वो प्रोफेसर की एग्ज़ाम्पल एक ली थी और इसी तरह से जो है वो एक और जो है वो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉम्पिटेंसीज consider there is a competency that defined good leadership. Now for the good leadership, consideration is considered to be one of the important part. Now what the consideration is the degree to which the leader lays out task responsibilities. Now what the competency is consideration, and to check competency it has 5 indicators whose presence would indicate the existence of consideration competency. So what are those 5 indicators? The first one is that the leader should support subordinates projects, then asks about the well-being of employees lives outside of work, then encourages subordinates to reach their established goals, then get to know employees personally, then shows respect for employees work and home lives. So these are basically the 5 indicators. Now when we will measure these 5 indicators, we can say that the leader has the consideration quality or not, or to what extent or to what degree leader has that consideration quality. सो इस तरीके से हम इंडिकेटर्स के थ्रू जो है वो हम चीज़ों का पता लगा रहे होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कि इन इंडिकेटर्स के थ्रू हम जो है वो चीज़ों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ठीक है जी, तो नाउ लेट्स get into the next slide, that is regarding necessary components for describing competencies. Now first of all it comes with the definition as we have already discussed, then there is description of specific behaviors when competency is demonstrated and when competency is not demonstrated, suggestions for developing the competencies. Now when we talk about the necessary components and when we were talking about the description basically, so in description of specific behaviors it is necessary that when an individual or employee or a personnel has demonstrated its competency, and when it was needed, whether it has not demonstrated the competency. So there are two things, there are two basically the important point for the specific behaviors, and then we also give suggestions for developing the competencies. Now it is basically the development part, बिकॉज अगर जो है वो एक आदमी की जो है वो कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं हो रही जहाँ पे उसको कॉम्पिटेंसी डेमॉन्स्ट्रेट करनी चाहिए थी और उसने नहीं डेमॉन्स्ट्रेट की, तो उसकी जो है वो आगे से फिर उसको ट्रेनिंग दी जाती है या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है वो उसको रखा जाता है। और अगर लेट सपोज कि वो कॉम्पिटेंसी जो है वो उसने डेमॉन्स्ट्रेट की है लेकिन इतने अच्छे तरीके से नहीं की या और बेहतर तरीके से भी कर सकता था, तो वहाँ पे क्या होता है कि फिर दोबारा जो है वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें जो हैं वो बेसिकली होती हैं। नाउ देयर कम्स द थर्ड पार्ट to measure the behavior, and it is one of the most crucial and important part, to choose a measuring system. मेजरमेंट सिस्टम जो होता है वो हम चूज़ कर रहे होते हैं कि हमने कौन सा एक्चुअली जो है वो सिस्टम लेके आना है। ओके जी, सो what the comparative system is, it basically compares employees with one another, and what an absolute system is, it compares employees with pre-specified performance standards. जब हम comparative system की बात करते हैं तो उसमें हम एम्प्लॉयज़ को आपस में कंपेयर कर रहे होते हैं और फिर वहाँ से जो है वो हम परफॉर्मेंस जो है वो उसकी निकाल के
और जिन लोगों को हमने ऑनरेरियम देना होता है या बोनस देना होता है तो हम उनको बोनस दे रहे होते हैं, जिनको हमने एनुअल इंक्रीमेंट देना होता है तो हम एनुअल इंक्रीमेंट दे रहे होते हैं, जिसको हमने एनुअल इंक्रीमेंट नहीं देना होता उसको फिर हम नहीं देते। तो ये मेजरमेंट सिस्टम जो है ये एक ऐसा क्राइटेरिया है, और ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी वजह ये है कि जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो एम्प्लॉयज़ के लिए जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोटिवेशन का जो तरीका होता है वो उसके रिवॉर्ड्स होते हैं या वो उसकी सज़ाएँ होती हैं जो कि हम साल के एंड पे दे रहे होते हैं, क्योंकि उसी से ही जो है वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं। वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन होती है कि अगर हमने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर दिया तो डेफिनेटली डिक्लेरेटिव नॉलेज उसके पास पहले ही होता है, प्रोसीजरल नॉलेज पहले ही होता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन अगर वो मोटिवेशन नहीं होती, रिवॉर्ड्स की मोटिवेशन नहीं होती, तो डेफिनेटली कोई भी आदमी जो है वो काम नहीं कर रहा होता उस तरह से। तो इसलिए हम जो मेजरमेंट सिस्टम चूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब कंपैरेटिव सिस्टम की बात करते हैं तो वो हम क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों को, वो एम्प्लॉयज़ को जस्टिफाई करने के लिए कि जो हमने सिस्टम था ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट था, और कुछ एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने काम किया, उन्होंने बहुत बेहतर काम किया तो उनको हमने रिवॉर्ड्स दिए। ये हम क्यों शो करा रहे होते हैं उन लोगों को जो कि काम नहीं कर रहे होते, कि उनको मोटिवेशन आए कि अगर एक आदमी मिस्टर ए जो है वो अगर ऑनरेरियम ले सकता है या बोनस ले सकता है या डबल इंक्रीमेंट ले सकता है तो आप भी ले सकते हैं, और आप इस तरह से काम करके जो है वो आप ले सकते हैं। और जो मिस्टर ए जो बहुत अच्छा काम कर रहा है उसको जो है वो मिस्टर सी के बारे में हम दिखा रहे होते हैं कि अगर ये आदमी काम नहीं कर रहा तो ये देख लें कि ये भी फेल हो सकता है, तो ये फेल हो सकता है तो आप भी फेल हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये बेसिकली चीज़ें चल रही होती हैं, और एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर जो है वो हम कंपेयर करते हैं कि हमने जो अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं क्या उन परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को भी मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दो चीज़ें जो हैं ये बेसिकली चल रही होती हैं। अब जब हम कंपैरेटिव सिस्टम के एडवांटेजेस को देखते हैं तो कंपैरेटिव सिस्टम के एडवांटेजेस जो हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि ये इजी टू एक्सप्लेन होते हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इट आइडेंटिफाइज टॉप एज वेल एज द अंडर परफॉर्मर्स, देन दे बेटर कंट्रोल फॉर बाइसेस एंड एरर्स फाउंड इन द एब्सोल्यूट सिस्टम्स, जिसके अंदर जो है वो लीनियंसी आ जाती है, सेवेरिटी आ जाती है, सेंट्रल टेंडेंसी आ जाती है। तो इसके अंदर जो है वो हम एरर्स और बाइसेस जो हैं वो हम बेहतर तौर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके इट्स डिसएडवांटेजेस आर रैंकिंग्स में नॉट बी स्पेसिफिक इनफ फॉर यूजफुल फीडबैक एंड प्रोटेक्शन फॉर लीगल चैलेंज, देन there is no information on relative distance between employees, and then specific issues with forced distribution method. So these are basically its disadvantages. Now let's come to the comparative systems in detail. Now when we talk about the comparative systems, it has different types. The first one is simple rank order, then there is alternation rank order, then there are paired comparisons, and then there is relative percentile, and then in the last there comes forced distribution. So these are basically the different types of comparative systems through which we measure the performance of the employees. But before that there are different methods, there are some new methods also for the to measure the performance. Now if we talk about this, these are basically the traditional methods on the left side, that is ranking method, paired comparison, grading, forced distribution method, forced choice method, checklist method, critical incidents method, graphical scale method, easy method, field review method, confidential report. So these are basically the different types of traditional methods. As far as the modern methods are concerned, it includes management by objectives, and then there is behaviorally anchored rating scales, then there is assessment centers, then there is 360-degree appraisal, and in the last there comes cost accounting method. Now I will try to explain it all, but as far as the traditional methods are concerned, some of the methods come under the umbrella of comparative systems, and some of the methods come under the umbrella of absolute systems.